अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है न्यूक्लिक एसिड। आज हम न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। सो what is the nucleic acid? Nucleic acids are basically largest and the most complex organic molecules. Nucleic acid was first isolated in 1871 by Frederick Misters. Nucleic acid is isolated from nuclei of pus cell, so that is why nucleic acid is called nucleic acid. Nucleic acids are macromolecules, huge polymers with molecular mass of over 100 millions. The polymers are unit is called, जो यूनिट्स होते हैं पॉलीमर्स के उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. सो ईच न्यूक्लियोटाइड इज़ मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट. द फर्स्ट वन इज़ 5 कार्बन्स एंड द जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वन इज़ 5 कार्बन्स मोनोसेक्राइड्स अ पेंटोज शुगर एंड सेकंड वन इज़ द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड थर्ड वन इज़ द फास्फोरिक एसिड. So pentose sugar in ribonucleotides is ribose, while in deoxyribonucleotide it is deoxyribose. Nitrogen bases are of two types: single ring pyrimidine and double ring purines. पैरामिडाइंस क्या होते हैं? आर साइटोसिन, जिसको हम एब्रीवेटेड करते हैं एज सी, एंड थायामीन एब्रीवेटेड विद टी, एंड यूरिसाइल इज एब्रीवेटेड एज यू. बट in case of purine, the adenine is abbreviated by A and guanine is abbreviated by G. So the phosphoric acid H3PO4 has the ability to develop ester linkage with OH group of pentose sugar. In a typical nucleotides, the nitrogen bases are attached to position 1 of the pentose sugar, but the phosphoric acid is attached to carbon at the positions of 3 of pentose sugar. कंपोजिशंस की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स के जो सब यूनिट्स होते हैं विद हाई मॉलिक्यूलर वेट रेंज फ्राम 1286 to 30 lakhs. They are made up of carbon, hydrogen, oxygen and phosphorus. So nitrogen is from 15 to 16%, but the phosphorus is from 9 to 10%. On hydrolysis with either an enzymes or by heating the dilute acid or alkalines, the nucleic acid yields a group of compound जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. So the compound is formed by the combinations of base and pentose sugar is called nucleosides. The nucleosides, so when the nucleosides and phosphoric acids combine to form a nucleotide. Each nucleotide of RNA contains ribose sugar, but then each nucleotide of DNA is deoxyribose. One oxygen is removed from hydroxyl group of carbon atom, carbon number 2. इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी जो है ना दरकार होती है, जिसको हम एटीपी की फॉर्म में लेते हैं. जिसका एटीपी की फॉर्म में उसको क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड यूज एज अ एनर्जी करेंसी इन द सेल. पैरामिडाइंस को देखें तो इज़ अ 6 मेम्ब्रेन heterocyclic ring containing 2 nitrogen atoms. 3 important derivatives of pyrimidines are found in nucleic acid are thiamine, cytosine and uracil. Other important compounds containing pyrimidines are thiamine. फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स के जो फंक्शंस होते हैं एक डिवाइड होते हैं इनटू 2 categories. Deoxyribonucleic acid mean to say DNA and riboxynucleic acid mean to say RNA. deoxyribonucleic acid को देखें तो ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल पॉलीमर्स होते हैं ऑफ deoxyribonucleosides के
फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। फंक्शंस क्या होते हैं, ये स्टोरेज करते हैं ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स को, मीन टू से कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है, हेरिडिटी मटेरियल्स होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, डीएनए के अंदर स्टोर होता है। आरएनए को देखें तो आरएनए एज कम्पेयर टू डीएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड and non-helic polymer of ribonucleosides found in the nucleus and cytoplasm of the cell। इनका क्या काम होता है, फंक्शन देखें तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा आरएनए की 3 मोस्ट कैटेगरीज या 3 मोस्ट फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉपीज़ होती हैं, सिलेक्टेड कॉपी होती हैं आरडीएनए की, वो कैरी करती हैं मैसेज, जेनेटिक मैसेज को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। फिर जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है हमारा मैसेज, तो वहाँ पर एक और मैसेंजर आरएनए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं, इसके अलावा ये कैटालिटिक और कोएंजाइम फंक्शंस भी करते हैं। थर्ड वन क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अमीनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये थोड़े से फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे डीएनए को और आरएनए को। अल्लाह हाफ़िज़।